Okay, so we have already started this Gauss divergence theorem. This is the last theorem or last topic as far as this unit 5 is concerned. So these theorems give the relation between the surface integral and the volume integral. So here the important condition is what, that surface must be closed surface. If it is not closed, then we cannot apply Gauss divergence theorem for that surface. So whatever a closed surface is there S, okay, then that boundary is called as S, and whatever the volume which is enclosed under this, we call it as V. Okay, so so under this case, the surface integral of f bar dot ds bar is equal to the volume integral of del dot f bar into dv. And I think we have completed this first example where your surface is a sphere, and clearly you can see this sphere is a closed surface. Okay, so first calculate this surface integral. Okay. So this is your sphere. Okay, whatever the boundary is there, that is your surface S, and whatever the inside volume is there, that is your V. Okay, so basically, so here we have to evaluate this surface integral by using this Gauss divergence theorem. So by this Gauss divergence theorem, this surface integral is equal to the volume integral, okay, del dot f bar into dv. So just calculate del dot f bar and calculate this triple integral over a sphere. Okay, so see, we have actually we have a specific cases as far as substitution is concerned, है ना. Substitution कौन से केस में आपको यूज करना है कि only for sphere, only for ellipsoid, सर्कल एंड इलिप्स. ओके, तो इलिप्स और सर्कल, स्फीयर और इलिप्स, ऐसे केसेस में ही जनरली आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाना है. Otherwise, if it is a double integral, then we have to go by the vertical and horizontal strip. Okay, like that. And if it is a triple integral, then in that case basically आपने ये ऑलरेडी M2 में देखा होगा. In that case basically we have to convert triple into double. पहले ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करो, then try to solve this double integral. Okay, so in today's lecture we'll try to solve example on this case. Okay, triple integral, but your region is not a sphere. Okay, it is other than sphere and ellipse. So I want to take that example today. So please go through this example. Okay, it is already there in recording also, और आप एक बार PDF से भी ये सारी चीजें चेक कर सकते हो. ठीक है, so just calculate del dot f bar, then you have to just calculate this volume over a sphere. तो ये standard substitution है जो आपको याद रखना है. X equal to what, Y equal to what, and Z equal to what, and what are the values of dx, dy, dz, what are the limits of r, theta and phi. Just put all these values, separate your integral, and हर एक का अलग अलग होगा, and within 1 or 2 steps you will get your answer, or you can use your calculator also. ठीक है, so that is the first example. Now today I want to explain this second example. So I will explain in detail as from this you can easily understand this theorem. Okay. And now this is your example number 2. Okay. So in solution, पहले क्वेश्चन रीड करते कि क्या क्या आपको करना है. जनरली ये स्टेटमेंट मेंशन होगा, मेंशन नहीं होगा, वी डोंट नो, है ना. कौन सा थ्योरम आपको यूज करना है ये सारे क्वेश्चन में मेंशन होता है, ऐसा नहीं है. ठीक है, एज फार एज थ्योरी एग्जांपल्स आर कंसर्न. तो यू जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट. हियर वी हैव टू इवैल्यूएट दिस सरफेस इंटीग्रल ओवर एस. ओके, वेयर एफ बार इज गिवन एंड दैट सरफेस इज गिवन. ओके, बट आपको मैंने एक ट्रिक दी थी. इफ योर सरफेस, ओके, इफ योर सरफेस इज नॉट पैरेलल टू, जस्ट लेट मी add. Okay, if your surface is not parallel to either xy plane, yz plane and xz plane. Okay, इन तीनों प्लेन को अगर वो आपका सरफेस पैरेलल नहीं आता है, okay, in that case basically we apply the Gauss divergence theorem. Okay, so if the surface is not parallel to any of this plane, okay, then apply Gauss divergence theorem. Then in that case basically we have to apply this Gauss divergence theorem.
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क, क्योंकि एट देन आपको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन से केस में आपको गॉस डाइवर्जेंस अप्लाई करना है, कौन से केस में स्टोक अप्लाई करना है, कौन से केस में ग्रीन थ्योरम अप्लाई करना है। ओके, जनरली स्टोक के एग्जांपल आइडेंटिफाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट डेल क्रॉस एफ बार की वजह से स्टोक के थ्योरम क्वेश्चंस आइडेंटिफाई हो जाते हैं। बट as far as this Gauss divergence theorem is concerned, you need to stick with this condition. ठीक है, so here you can easily see that this surface S is actually a part of sphere above this xy plane, है ना। So if I whether we have finished this example, I don't know actually. ये भी हुआ था या नहीं हुआ था, can you tell me? Anyone? मैं तो repetition होगा, whether we have finished this example or not. Yes, anyone? ये लिया था कि नहीं लिया था, इतना आप बोल सकते हो। You may reply quickly. Yes sir, ओके, ठीक है। नहीं याद आ रहा था, मतलब हो भी गया वगैरह, बट अगर आपको नहीं याद आ रहा है, कैन से डायरेक्टली नो टू मी। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट मैंने लिया ये तो आई डोंट वांट टू रिपीट इट। ओके, सो so what is given? We have given a sphere but above the xy plane. So if I try to draw this diagram, so x-axis, y-axis and z-axis, so draw properly, x-axis, y-axis and z-axis, and we know that your sphere about this is x square plus y square plus z square equal to 4. This is actually a sphere with radius 2. So पहले मैं वो sphere ही draw करता हूँ। So this is your sphere, correct? But यहाँ पे क्या दिया है? But you have to consider this sphere above this xy plane. xy plane में आपको पता ही है, okay, this is your xy plane, नीचे का जो पार्ट आ रहा है, this is your xy plane. So you have to consider a sphere above xy plane. So we don't want this part, तो मैं delete करता हूँ. So we don't want this part. We have to consider this sphere above the xy plane. So it look like this hemisphere. So basically it become a hemisphere. कट किया आपने यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज योर गिवन डायग्राम, करेक्ट, एंड हियर यू कैन इजीली सी दैट दिस स्फीयर इज अबाउट द XY प्लेन, ओके, XY प्लेन के ऊपर ही। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस स्फीयर? ओके, दिस स्फीयर इज नॉट क्लोज नाउ, ओके। अगर आप कट करते हो मिडल पे कहीं पे, ओके, सो ऑब्वियसली इट बिकम ओपन, ओके। सो दिस स्फीयर इज ओपन एट दिस पार्ट, है ना, ये जो नीचे की बाउंड्री है सर्कल जैसे दिखाई दे रही है, ओके, एट दैट पार्ट दिस स्फीयर बिकम ओपन, ठीक है। एंड आपका क्वेश्चन क्या है? बेसिकली वी हैव टू इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल ओवर ओनली दिस surface. So whatever surface here I draw, that surface is called as S, but here I cannot apply, okay, but we cannot apply this Gauss divergence theorem for surface S, okay. Reason क्या है? Because it is open surface, ठीक है। क्या आपको मैं पहले ही क्लियर किया है? इफ योर सरफेस इज क्लोज देन एंड देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देन सिंस दिस सरफेस इज ओपन, ओके, but we have to find this surface integral over this S. So what we have to do is make this surface to be closed, okay. इस surface को आपको close करना है, तो जहां पे वो ओपन था, ओके, वहां पे एक surface ऐड करो, ठीक है। So here I add one surface and call that surface as say S1, ठीक है। So now here I consider one surface S1. Now by considering surface S and S1, this surface become close, ठीक है। अभी आपका ये सरफेस क्लोज होगा, ये यहाँ पे ओपन था XY प्लेन के ऊपर, या जो लोअर पार्ट था वहाँ पे ये सरफेस आपका ओपन था। So because of that we cannot apply this Gauss divergence theorem. So to apply the Gauss divergence theorem, here I make this surface to be closed, है ना, and now we can apply this Gauss divergence theorem if I consider this both surface. अगर मैं S और S1 दोनों को एक टाइम पे कंसिडर करता हूँ, then it become closed, okay. So therefore, so the surface integral over S f bar into ds bar plus surface integral over S1, है ना, दोनों को एक टाइम पे कंसिडर करता हूँ, f bar dot ds bar. Now this combination actually gives you the closed surface. I hope it is clear to everyone, ठीक है। So now it is a closed surface. So since it is a closed surface, means you can apply the Gauss divergence theorem. So what Gauss divergence theorem gives you? So this surface integral actually is equal to the volume integral, okay. So the surface integral is equal to the volume integral del dot f bar into dv, ठीक है, okay.
तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया था, आपका गिवन सरफेस क्लोज नहीं था तो उसको क्लोज करके देन हियर आई कंसीडर दिस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. सो दिस स्टेटमेंट एक्चुअली विल गेट बाय द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. ठीक है ना. बट व्हाट इज आवर क्वेश्चन, वी हैव टू कैलकुलेट सरफेस इंटीग्रल ओवर ओनली एस. ये जो एस जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, आपको बस वही सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. ओके, सो दैट इंप्लाइज द सरफेस इंटीग्रल ओवर एस f bar dot ds bar is equal to volume integral del dot f bar into dv minus, okay, you can subtract this surface integral over s1 f bar dot ds bar. Okay, one by one दोनों ही solve करो, calculate this first integral, calculate this second integral, whatever the difference is there, that is your final answer. ठीक है, so let me calculate this first. Okay, del dot f bar over a volume. Okay, so क्या आएगा ये, so for that we need this f bar. Okay, so what is f bar? f bar क्या है, मैं ऊपर से कॉपी करता हूँ. what is f bar? y square z square x square. so f bar is y square z square x square. this is your f bar. ठीक है, and what is del dot f bar? what is del dot f bar? क्या आता है ये, can anyone? अभी बहुत बार हुआ है. डेल डॉट एफ बार कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता ही है. सो व्हाट इज डेल डॉट एफ बार? डेल डॉट एफ बार के लिए आपको करना क्या है, बेसिकली जो आई का कोएफिशिएंट है उसको एक्स से डिफरेंशिएट करो, दैट इज 0. जो जे का कोएफिशिएंट है उसको वाई से डिफरेंशिएट करो, 0. जो के का कोएफिशिएंट है उसको जेड से डिफरेंशिएट करो, 0. सो दैट वैल्यू इज 0. सो एज डेल डॉट एफ बार इज 0, दिस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ बार है ना dv becomes 0. okay, एक तो इंटीग्रल आपने क्विकली सॉल्व किया. नाउ कम टू सेकंड इंटीग्रल. सो इन सेकंड इंटीग्रल बेसिकली वी हैव टू सॉल्व द सरफेस इंटीग्रल ओवर s1 f bar dot ds bar. that is our target. okay, so let me simplify this first. that is nothing but surface integral over s1. we know the definition of ds bar. definition of ds bar is f bar dot n cap into ds. okay, so remember this definition. ds bar is actually n cap into ds. now come to surface s1. So from that surface I want to explain what is this n cap. let me add. okay, now here I want to explain what is this n cap. n cap is actually what, the outward normal. n cap is actually the outward normal to surface s1. चलो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं. so this is your surface s1. okay, so for that surface s1, there are two normal. one is this surface s1, मतलब ये नीचे का जो पार्ट है, ये भी एक नॉर्मल होगी. सॉरी ड्रॉ कर रहा हूँ. सो ये भी एक नॉर्मल होगी टू दिस सरफेस. ओके, यू कैन कंसिडर दिस इज आल्सो अनदर नॉर्मल. बट आपको कौन से नॉर्मल कंसिडर करने हैं? सो सपोज दिस इज योर फर्स्ट नॉर्मल, सपोज दिस इज योर सेकंड नॉर्मल. आपको जो नॉर्मल कंसिडर करनी है वो नॉर्मल क्या चाहिए? आउटवर्ड नॉर्मल आपको चाहिए. सो कैन एनीवन टेल मी विच नॉर्मल यू हैव टू कंसिडर, फर्स्ट और सेकंड? your normal must be the outward normal. so can anyone tell me which normal you have to consider, first or second? yes, कौन सी नॉर्मल कंसिडर करनी है आपको इस सरफेस s1 के लिए? विच नॉर्मल इज द आउटवर्ड नॉर्मल, फर्स्ट आउटवर्ड नॉर्मल या सेकंड आउटवर्ड नॉर्मल? यस, फर्स्ट, बिकॉज दैट सेकंड नॉर्मल एक्चुअली कट्स द गिवन सरफेस. ओके, सरफेस के अंदर जा रही है, सरफेस को कट कर रही है, देयरफॉर वी हैव टू कंसीडर ओनली दिस फर्स्ट नॉर्मल. तो ये जो फर्स्ट नॉर्मल है, इट इज एक्चुअली द नेगेटिव पार्ट ऑफ z. सो नेगेटिव पार्ट ऑफ z एक्चुअली, और नेगेटिव पार्ट ऑफ z मींस व्हाट? माइनस k bar. सो दैट नॉर्मल इज एक्चुअली माइनस k bar. एंड व्हाट इज f bar? f bar आपको पहले ही पता है, ऊपर भी लिखा था मैंने, y square z square x square. सो व्हाट इज f bar? y square z square x square. now just calculate their dot product. so f bar dot product with n cap. okay, आपको पता है कैसे लेना है, कोएफिशिएंट वाइज लेना है. यहाँ पे i का कोएफिशिएंट y स्क्वायर है, यहाँ पे है ही नहीं. यहाँ पे j का कोएफिशिएंट z स्क्वायर है, वहाँ पे है ही नहीं. यहाँ पे k का कोएफिशिएंट x स्क्वायर है, और वहाँ पे -1 है. आई होप इट इज करेक्ट. okay, so that is equal to minus x square. now write down this integral. so surface integral over s1 f bar dot ds bar is actually equal to the surface integral over s1. so this is actually the minus x square, and you can easily see that this surface is parallel to xy plane. okay, this surface is parallel to xy plane, therefore your ds is actually dx into dy.
So that ds is actually equal to, so here also I can write this, n cap is this, and this surface is parallel to xy plane, therefore your ds is dx dy. So dx is ds dy. Now what is surface S1? What is surface S1? Where S1 is what? Can you tell me the equation of S1? S1 का equation क्या है? What is surface S1? Surface S1 क्या होगा? S. What is surface S1? x square plus y square is equal to 4. 4. Equation क्या आएगा उसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. सर्कल है वो. ओके, कैसे कैलकुलेट किया? आप देखो ना इस प्लेन के ऊपर. ओके, जेड एक्सिस की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या है? 0. एज दिस सर्कल इज ऑन एक्स वाई प्लेन, एज दिस सर्कल इज ऑन एक्स वाई प्लेन, देयरफॉर जेड इक्वल टू 0. सो जस्ट पुट जेड इक्वल टू 0, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ दिस सरफेस S1, and that equation is x square plus y square equal to 4. So basically our question is what? Just calculate this surface integral over a circle. Okay, जैसे आपको पता है कि अगर आपको सर्कल के ऊपर कैलकुलेट करना है, so you have to remember this substitution. Put x is equal to, अभी डबल इंटीग्रल है तो r आने वाला, so put x is equal to r cos theta, y equal to r sin theta. Okay, dx dy replaced by r into dr d theta. ये याद ही रखना है आपको. r means radius vary from 0 to 2. Okay, theta is the angle vary from 0 to 2 pi. Just write down this integral. So it is equal to, r and theta में ऑर्डर आपकी फिक्स रहती है. Okay, पहले r से करो उसके बाद थीटा से करो. So theta vary from 0 to 2 pi, r vary from 0 to 2. x square की वैल्यू क्या है? This minus sign is as it is. x square की वैल्यू क्या है? r square cos square theta. Okay, dx dy is replaced by r into dr d theta. Okay, now just do it quickly. So which is equal to, अभी यहाँ पे लिमिट्स आपके कांस्टेंट है और x r का पार्ट अलग है, थीटा का पार्ट अलग है. सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस थीटा वैरी फ्रॉम 0 to 2 पाई. थीटा का मतलब क्या है? cos स्क्वायर थीटा d थीटा मल्टीप्लाई बाय r वैरी फ्रॉम 0 to 2. दिस इज r क्यूब इनटू dr. सो जस्ट सॉल्व दिस पार्ट एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. ये जो भी वैल्यू आएगी, ओके, ये वैल्यू आप क्या करो? जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर, क्योंकि ये आपका मेन क्वेश्चन है. So just put this value here, okay, or we call it as that equation as 1. So just put in equation 1, then you will get your final answer. Okay, so just I will write that part. Okay, put above value, क्योंकि ये आपसे मैं शेयर करता हूँ. Put above value in equation 1. ठीक है. So I will show you all this calculation once again. ठीक है. So you can see this as there are two surfaces, so I have to consider one surface S1, and then that del dot f bar is 0. तो ये ये वैल्यू 0 आ रही है, तो ये राइट साइड में शिफ्ट होगा, इट बिकम माइनस S1. एज इट इज अ सर्कल, ये आई थिंक 2 है, 4 का कुछ तो है, शायद वो मिस्टेक हो गई है. सो लेट मी, हाँ ओके, करेक्ट किया उन्होंने. रेडियस इज 2. ठीक है. सो पुट x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, थीटा वैरी फ्रॉम दिस. डू दिस ऑल कैलकुलेशन, योर आंसर इज माइनस 4 पाई. ओके, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ रही है? माइनस 4 पाई. ओके, तो मैं वहीं से कॉपी करके आपको फिर से यहाँ पे दे सकता हूँ सॉल्व करके. सो इफ यू सॉल्व दिस, दैट वैल्यू इज माइनस 4 पाई. एंड इफ आई पुट इन इक्वेशन 1, सो दिस सरफेस इंटीग्रल ओवर S f bar dot ds bar is actually one value is 0, minus second value is minus 4 pi. So your final answer is 4 pi. ठीक है. I hope it is clear. Okay, and now come to next question. ठीक है. तो ये भी एक बार मैं सॉल्व करके देता हूँ, then we'll directly solve through this PPT. ठीक है. सॉरी, एक दो क्वेश्चन अच्छे से ले लेता हूँ. ठीक है. एंड नाउ विल टेक द अनदर क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3. ठीक है, हो जाएगा ये. सो हियर आल्सो इन सॉल्यूशन you can easily see that this surface S is actually a part of cylinder. Cylinder का part है. So this surface S is not parallel to xy plane, yz plane and xz plane. As a surface S not parallel to xy, yz and xz plane. So basically we have to apply here Gauss divergence theorem. Okay, so apply Gauss divergence theorem. Okay, but if I try to draw this diagram as it is a cylinder in 3 dimension, ये 3 dimension है क्योंकि वेक्टर से आपको समझ में आ रहा है. Okay, तो ये सिलेंडर होता है 3 dimension में. I will show you
ओके पहले मैं डायग्राम तो अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ. सो एक्स एक्सिस, y axis and z axis. Can anyone tell me what is the diagram of this? x square plus y square equal to 4. ये जो सिलेंडर है कैसे ड्रॉ करना है? This cylinder is symmetric about what? हाँ? This cylinder x square plus y square equal to 4. This cylinder is symmetric about z axis. Okay. ये आपने M2 में सारी चीजें आपने लर्न की होगी, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ. वरना अगर नहीं भी आ रहा है तो यहाँ से आपको समझ में आएगा. सो दिस इज द सिलेंडर. ऑलवेज रिमेंबर जो वेरिएबल एब्सेंट है ना, जो वेरिएबल वहाँ पे एब्सेंट है उसके अबाउट दैट एक्सिस यू हैव टू ड्रॉ दिस सिलेंडर. सो एज जेड इज एब्सेंट, सो दिस इज द सिलेंडर अबाउट जेड एक्सिस. बट दिस इज द इनफाइनाइट सिलेंडर. तो जो आपका सरफेस यस है, जो आपका सरफेस यस है, दैट सरफेस एस इज इनफाइनाइट सिलेंडर. ठीक है. तो वी कैन नॉट अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया, टू कन्वर्ट इनटू अ बाउंडेड सरफेस और इनटू क्लोज सरफेस, कंसीडर टू मोर प्लेन्स z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 2. तो z इक्वल टू 0 प्लेन मतलब आपको पता ही है एक्स वाई प्लेन ही होता है. सो दिस इज वर z इक्वल टू 0 प्लेन. तो एक प्लेन यहाँ पे आएगा, so that it become close. So this plane is z equal to 0. Okay. And एक और प्लेन ड्रॉ करना है z इक्वल टू 2 हाइट पे. सो देयर इज वन मोर प्लेन वी हैव टू ड्रॉ एट द हाइट z इक्वल टू 2. ठीक है. सो दैट नाउ इट बिकम बाउंडेड. तो जैसे आप ये प्लेन ड्रॉ करते हो, क्योंकि ये पहले इनफाइनाइट सिलेंडर था, जैसे आप प्लेन ड्रॉ करते हो, सिलेंडर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन आता है ना, ये एक्चुअली इनफाइनाइट सिलेंडर था, तो ऐसे ऊपर ये कंटिन्यू हो रहा है, ये भी नीचे से ऐसे कंटिन्यू हो रहा था, बट आपने अभी इसको क्लोज किया है. ओके. ये एक प्लेन कंसिडर करके, तो प्लेन और सिलेंडर आप इमेजिन करके देखो, सिलेंडर को या बॉटल आप इमेजिन करो, आप अगर कट करते हो तो उनका जो इंटरसेक्शन आता है दैट इज एक्चुअली सर्कल. सो हियर यू विल गेट वन सर्कल. ठीक है. एंड हियर आल्सो यू विल गेट वन, सॉरी यहाँ पे अबाउट दिस. सो हियर आल्सो यू विल गेट वन सर्कल एक्स वाई प्लेन के ऊपर. ठीक है. सो बेसिकली नाउ जस्ट गिव मी. तो ये जो सिलेंडर है दैट सरफेस इज एस, करेक्ट. एंड हियर आई हैव एडेड टू मोर सरफेसेस बिकॉज ऑफ z equal to 0 and z equal to 2. So in that green surface is z equal to 0. ठीक है. And denote that surface by S1. So your S1 is z equal to 0. और एक और कलर में ले रहा हूँ. And this is your surface S2. That surface is S2 which is z equal to 2. So now we can apply this Gauss divergence theorem if I consider all three surfaces. है ना. S मतलब सिलेंडर का ही पार्ट है, जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया वही है. सो एस इज दिस पार्ट ऑफ सिलेंडर. सो एस, S1 और S2 इन तीनों को अगर मैं कंसिडर करता हूं, देन यू विल गेट अ क्लोज सरफेस. तब ये जाके क्लोज बनेगा, एंड देन यू कैन अप्लाई दिस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. ओके. सो नेक्स्ट लाइन, बाय कंसिडरिंग सरफेस S f bar dot ds bar, by considering surface S1 f bar dot ds bar, by considering surface S2 f bar dot ds bar, you will get a closed surface. ठीक है. and by Gauss divergence theorem that is equal to the volume integral over V del dot f bar into dv. so this you will get by Gauss divergence theorem. ठीक है. बट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बट आपको s के ऊपर ही कैलकुलेट करना है. ओके. बट यू हैव टू कैलकुलेट ओवर ओनली s. ओके. so that implies the surface integral over S f bar dot ds bar is actually equal to the volume integral over V del dot f bar into dv minus the surface integral over S1 f bar dot ds bar minus surface integral over S2 f bar dot ds bar. So quickly calculate this. What is f bar given? Okay. पहले ये फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड. अब ये क्विकली करने वाला क्योंकि ये सिमिलर कैलकुलेशन है. सो व्हाट इज एफ बार गिवन? एफ बार क्या है? y x और z. डू इट क्विकली. y I bar, y भूल गया मैं, x और z. आई थिंक एक बार चेक ही करता हूँ. ओके. y x और z. दिस इज योर एफ बार. ठीक है. सो दिस इज योर एफ बार एंड डेल डॉट एफ बार इज व्हाट? So for del dot f bar,
वी हैव टू आई का जो भी कोएफिशिएंट है, वट एवर द कोएफिशिएंट ऑफ आई इज देयर, ठीक है। सो फॉर दैट कोएफिशिएंट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय सॉरी जो भी कोएफिशिएंट है उसका आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है विच इज 0, जे का जो भी कोएफिशिएंट है उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है विच इज 0, जेड का के का जो भी कोएफिशिएंट है उसका विद रिस्पेक्ट टू जेड लेना है विच इज 1, करेक्ट। सो डेल डॉट एफ आर इज एक्चुअली 1. सो इफ आई पुट दिस वैल्यू हियर, सो द फर्स्ट इंटीग्रल दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर डेल डॉट एफ बार into dv is actually equal to see the volume integral over v del dot f bar is 1, and what is dv? Dv is actually dx dy dz, okay. So where v is what? Where v is what? V is volume, sorry कुछ तो it's correct ना everything? I hope, okay. Where V is what? Volume of the sorry नहीं सिलेंडर का है ना, तो इसके आगे सॉल्व करना होगा, इसके आगे सॉल्व करना होगा। स्फीयर का होता तो मैं डायरेक्टली जंप कर सकता था, ओके। वेयर V is actually volume of the सिलेंडर। सो आई वांट टू सॉल्व दिस ट्रिपल इंटीग्रल। अभी कोई लॉजिक आपका वर्क नहीं करेगा क्योंकि इससे पहले सारे एग्जांपल में आप क्या कर सकते थे, आप डायरेक्टली स्फीयर और इलिप्स के ऊपर जाके वो सॉल्व हो सकता था, ठीक है। हियर आल्सो यू कैन सॉल्व दिस एज dx dy dz गिव्स यू द वॉल्यूम। अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता है तो भी ये डायरेक्टली होगा, बट मैं अदर वे से भी आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। सो इट डिपेंड ऑन यू बाय विच वे यू वांट टू सॉल्व दिस एग्जांपल, ठीक है। इन जनरल अगर आपको मतलब विदाउट स्फीयर एंड विदाउट एलिप्स अगर आपको ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करना है, सो देयर आर सम स्टेप्स, क्विकली एक्सप्लेन कर रहा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए? कन्वर्ट ट्रिपल इनटू डबल यूजिंग लिमिट्स ऑफ z, फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में जब भी आप ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करते हो, जो डबल इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है, सॉल्व डबल इंटीग्रल ओवर अ रीजन R, ठीक है। सब f ऑफ x y dx dy ये एक्चुअली v होता है, आप डबल में करते हो तो रीजन R बन जाता है। अभी इसमें बस मुझे एक्सप्लेन करना है व्हाट इज रीजन R। सो वेयर रीजन R इज प्रोजेक्शन ऑन xy प्लेन। एक्सप्लेन करता हूं सारी चीजें, डोंट वरी, ठीक है। डू इट क्विकली। पहले क्या करना है, स्टेप 1 में मुझे ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करना है जेड के लिमिट से, ठीक है। तो मैं सो दिस आई कैन राइट इट एज इक्वल टू डबल, तो पहले मैं लिख लेता हूं, इनमें से एक इंटीग्रल को मुझे सॉल्व करना है, डबल इंटीग्रल ओवर रीजन R, और एक इंटीग्रल मुझे जेड के ऊपर सॉल्व करना है, जेड इक्वल टू समथिंग टू जेड इक्वल टू समथिंग। फंक्शन यहाँ पे 1 ही है, तो पहले मैं जेड के ऊपर सॉल्व करने वाला हूँ एंड फिर उसके बाद ये dx dy का देखने वाला हूँ, ओके। तो z के ऊपर सॉल्व करने के लिए z की लिमिट चाहिए, तो z की लिमिट आपको पता ही है, एट बेस यू विल हैव z इक्वल टू 0 एंड एट टॉप यू विल हैव z इक्वल टू 2। सो हियर z वैरी फ्रॉम 0 to 2, so z vary from 0 to 2. Solve this quickly. So double integral over R, this is actually dz, and if I put this, मैं डायरेक्ट करता हूँ ये सारी चीजें, so you will get 2 into dx dy. Now what is region R? Where R is actually what? Projection on xy plane. Where R is actually what? Projection on xy plane. ये कैसे करना है? Simply क्या करो, आप ऊपर से एक टॉर्च कंसिडर करो, जिनको ये इमेजिन नहीं हो रहा है ना, ओके, कलर भी नहीं है अभी, ऊपर से एक टॉर्च कंसिडर करो यहाँ पे, ओके, एक टॉर्च कंसिडर करो और देखो कि सिलेंडर की इमेज क्या आएगी। व्हाट इज इमेज ऑफ दिस सिलेंडर? यहाँ से अगर आप ऊपर टॉर्च करते हो तो शैडो जो XY प्लेन पे मिलने वाली है, व्हाट इज दैट शैडो? एनीवन बोलो जल्दी से, लास्ट। यस, प्लीज रिपीट। सर्कुलर, सर्कल, सर्कल, सर्कुलर, क्योंकि यही नीचे 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 से दिखाई देगा ना, तो बेसिकली जो S1 सरफेस है ना वही आपको दिखाई देने वाला है। आप ये इमेजिन करो, ऊपर से अगर आप एक टॉर्च कंसिडर करते हो ना यहाँ पे, तो जो शैडो आपको XY प्लेन पे मिलेगी ना, दैट शैडो इज एक्चुअली व्हाट? योर S1। या ये इसको आप नीचे इमेजिन करो, ये सेम दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो S1 है, इस S1 का इक्वेशन क्या है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ S1? सर्कल है, उस सर्कल का इक्वेशन क्या है? हाँ, कौन सा सर्कल है? सर्कल का इक्वेशन क्या है? सर्कल की रेडियस क्या है?
यस, सर्कल की रेडियस क्या है या सर्कल का इक्वेशन क्या है? सिंपली जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? बेसिकली ये जो डिस्टेंस है सिलेंडर में आपको पता ही है x² + y² = 4, तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 ही डिस्टेंस है, ठीक है। और अब ये सेंटर के ऊपर है, अबाउट सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0 है, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल? x² + y² = 4, ठीक है। सो बेसिकली जो r आपका होगा, जो प्रोजेक्शन आपको मिलने वाला है, that is actually x² + y² = 4. Okay, so to solve this double integral over a circle, we have to put x is equal to r cos theta as it is a double, r cos theta, y equal to r sin theta, ठीक है। फिर dx dy रिप्लेस होगा r into dr d theta, r के लिमिट्स क्या है? 0 to 2, थीटा के लिमिट्स क्या है? 0 to 2 pi. Just put this values, so you will get it is equal to theta vary from 0 to 2 pi, r vary from 0 to 2 as it is a constant, r into dr d theta. So which is equal to, as 2 is a constant, theta vary from 0 to 2 pi, d theta, r vary from 0 to 2, r into dr, ठीक है। So which is equal to 2 into 2 pi मल्टीप्लाई बाय या r²/2, इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है? r²/2, सो दैट इज 0 to 2, दैट इज व्हाट 4 पाई मल्टीप्लाई बाय ये होगा 2, है ना। 2² 2 कैंसिल होगा, यू विल गेट ओनली 2, दैट इज योर आंसर इज 8 पाई, ठीक है। तो ये था फर्स्ट का आंसर। नाउ फॉर सेकंड एंड थर्ड, ओके, फॉर S1 एंड फॉर S2 मैं बस कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, डायरेक्टली आपको आंसर दिखाता हूँ फिर। हाँ, मुझे बस आपसे 2 ही चीज़ें चाहिए। S1, ओके, लिख लेता हूँ नीचे, फिर आप बोलो। सो सरफेस इंटीग्रल ओवर S1 f बार डॉट ds बार, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है? सरफेस इंटीग्रल ओवर S1 f बार डॉट n कैप इंटू ds। आपको मुझे बस ये बोलना है कि व्हाट इज n कैप एंड व्हाट इज ds, जस्ट आई वांट दिस इंफॉर्मेशन। And now for surface integral over S2 f bar dot ds bar, that value is surface integral f bar dot n cap into ds. So here also I just want what is n cap and what is ds. तो आ जाओ फिर S1 दिखाता हूँ पहले मैं आपको। S1, टेल मी क्विकली, S1 सरफेस के लिए n cap क्या होगा? ये जो नीचे का सरफेस है ग्रीन कलर से या जो दिखाई दे रहा है S1 सरफेस, उस सरफेस का n cap क्या होगा? यस, व्हाट इज n cap? n cap क्या होगा? z एक्सिस। ये एक पॉसिबल वैल्यू है, ये एक पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। बट अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड, बट जब आप सेकंड लेते हो, वो सरफेस के अंदर जा रहा है, आपको आउटवर्ड नॉर्मल चाहिए, आउटसाइड ऑफ दैट सरफेस। सो आउटवर्ड नॉर्मल के लिए आपको फर्स्ट कंसिडर करना है। फर्स्ट कंसिडर करना मतलब वो क्या है? जेड का निगेटिव पार्ट है, करेक्ट बोला था आपने जेड एक्सिस, बट वो जेड का क्या है? निगेटिव पार्ट। सो दैट वैल्यू इज माइनस के बार, और ये जो सरफेस है ये एक्स वाई प्लेन को पैरेलल है, ओके। सो दैट इंप्लाइज फॉर सरफेस S1 यू विल गेट माइनस के, ओके, एज वो आउटवर्ड नॉर्मल है, वो नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगी, एंड सरफेस इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, सो यू विल गेट dx dy। अभी S2 सरफेस के लिए आपको बोलना है, सो आ जाओ S2 सरफेस के लिए। S2 सरफेस के लिए नॉर्मल क्या होगी? एक ऐसी होगी, एक ऐसी होगी, फर्स्ट और सेकंड में कौन सी करेक्ट है? और व्हाट इज दैट वैल्यू? व्हाट इज n कैप? के बार, क्योंकि वो जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप सेकंड लेते हो तो फिर से वो सरफेस के अंदर आ रही है। सो फॉर दैट हियर n कैप इज के बार, और ये भी सरफेस एक्स वाई प्लेन को पैरेलल है। सो अदर थिंग्स आर सेम। सो हियर आल्सो यू विल गेट के बार एंड दिस सरफेस इज पैरेलल टू dx dy, okay. Now you can put your roll number in chat box also, okay. I just want to show you the final answer, ठीक है। बट प्लीज फोकस हियर, सारी चीजें मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ओके। तीनों सरफेस के लिए चल रहा था, ऑलमोस्ट आई हैव डन ऑल दिस कैलकुलेशन, ओके। ये यहाँ तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज 8 पाई। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको एरिया पता है ना तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज अप टू यू, यू कैन यूज दिस शॉर्टकट ऑल्सो, ओके, बट ये ईजी होगा, ठीक है। बट मुझे वो एक ट्रिपल का डबल में कन्वर्ट करके भी कैसे करना है वो भी एक्सप्लेन करना था, तो इसलिए मैंने वो ऐड किया। इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू गो बाय दिस वे और डायरेक्टली सॉल्व दैट एग्जांपल, क्योंकि वो dx dy एरिया होता है, आप उससे भी जा सकते हो, ठीक है। नाउ सरफेस S1 और S2 के लिए के कैप, ये इनका सरफेस S1 S2 अलग होगा, प्लस के कैप मतलब आपको पता है कौन सा सरफेस है, ऊपर का सरफेस है वो,
ठीक है। तो उस पर सॉल्व करने के लिए एफ बार डॉट एन कैप, तो एफ बार डॉट एन कैप जेड आता है, सो डी एक्स डी वाई है ना, बट जेड की वैल्यू 2 है उस सरफेस पे, ठीक है, उस सरफेस पे, तो वो डी एक्स डी वाई ऑफ S1, बट आपको पता है S1 सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, सो दैट बिकम 8 पाई। बट जब आप सेकंड लेते हो, सेकंड में भी माइनस के बार आता है तो अंदर माइनस जेड आता है, बट जो सेकंड सरफेस है ना, मैं दिखाता हूं आपको क्या एक्चुअली हो रहा है। जो सेकंड सरफेस है ना, उस सरफेस के लिए जेड की वैल्यू 0 आती है। आप देखो ना, इस सरफेस के लिए यहाँ पे जेड क्या है, 0 है ना, सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए जेड क्या है, 0, तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक हो रहा है, बट फॉर दिस सरफेस जेड इज 0 ऑन दैट सरफेस, बस नोटेशन यहाँ पे अलग है, वहां पे मैंने S1 लिया होगा, यहाँ पे S2 है, ठीक है, दैट आंसर इज 0, सो यू विल हैव ओनली 2 वैल्यूज, ठीक है, वन इज 0, 8 पाई माइनस 8 पाई, एंड अदर इज 0, बट ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये भी आंसर क्या होगा, 0, सो एट द एंड योर सरफेस इंटीग्रल इज 0, करेक्ट। Only so 2-3 examples are remaining which are we can cover within 5 or 6 minutes, that I will do in next lecture, ठीक है।